بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سنہرے واقعات میں خوش آمدید دوستو۔ آج میں آپ کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم الشان شاگرد کا واقعہ سنانے لگا ہوں کہ جنہوں نے علم حاصل کرنے کا حق ادا کیا اور تاریخ اسلام نے انہیں حقیقی طالب علم کے نام سے یاد رکھا۔ یہ واقعہ سننے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ پہلے دور میں طالب علم کس قدر مشکل حالات سے گزرتے تھے اور علم حاصل کرنا کتنا مشکل ہوتا تھا۔ دور دراز کا سفر کیا کرتے تھے، کھانے پینے اور اپنی صحت کی پرواہ کیے بغیر علم حاصل کرنے کی جستجو میں لگے رہتے تھے۔ اس کے مقابلے میں آج جدید دور میں علم حاصل کرنا ہمارے لیے کتنا آسان ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم علم سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں حقیقی طالب علم کی عظیم الشان داستان۔ محمد بن سعید نے سرائے کے مالک سے کہا کہ اس مسافر کے بارے میں اپنے رب سے ڈرو، یہ بہت دور سے سفر کر کے اس ملک میں آیا ہے، اسے اپنے مسافر خانے سے مت نکالنا، یہ سخت بیمار ہے، غریب الوطن ہے، نہ جانے کتنے صحرا اور دریا عبور کر کے یہاں پہنچا ہے، اس کے آنے کا مقصد صرف تحصیل علم ہے۔ وہ مسافر خانے کا مالک بولا، اچھا تو بقی بن مخلد بہت دور سے یہاں آیا ہے؟ محمد بن سعید نے کہا، ہاں بالکل ایسا ہی ہے، یہ شخص زیادہ سے زیادہ احترام اور عزت کا مستحق ہے۔ دیکھو میں نے تم سے پہلے کبھی کوئی سوال یا مطالبہ نہیں کیا، بس اس شخص کے بارے میں میری یہ آپ سے درخواست ہے کہ اسے اپنے مسافر خانے سے نہ نکالنا، یہ حدیث کا عالم ہے اور احوال رجال اور اسناد پر بھی عبور رکھتا ہے۔ کیا ایسے شخص کو بیماری کے عالم میں بے یار و مددگار چھوڑا جا سکتا ہے؟ مالک کہنے لگا، تمہاری بات درست ہے، لیکن یہ شخص 2 سال سے ہماری اس مسافر خانے میں مقیم ہے، میں نے آج تک اس سے کرایہ طلب نہیں کیا، اب یہ سخت بیمار ہے، خدشہ ہے کہ اگر یہ وفات پا گیا اور اس کا جنازہ میرے اس مسافر خانے سے نکلا تو لوگ میرے مسافر خانے کو منحوس سمجھیں گے اور اس میں قیام کرنا بند کر دیں گے، اور یوں میں مفلس و قلاش ہو کر رہ جاؤں گا۔ یہ سخت بیمار ہے، اس وقت بھی اس کی موت واقع ہو سکتی ہے، نہ جانے کب اس کی آخری سانس نکل جائے اور یہ دم توڑ دے، اور وہ وقت کتنا منحوس ہوگا جب میں نے اسے اپنے مسافر خانے میں قیام کے لیے جگہ دی تھی۔ محمد بن سعید نے پریشان لہجے میں کہا، بلا شبہ تمہاری بات اپنی جگہ درست ہے، لیکن اگر تمہیں اس شخص کی اہمیت معلوم ہو جائے تو تم سجدہ شکر بجا لاؤ کہ تمہاری اس مسافر خانے میں کتنا مبارک اور محترم شخص قیام پذیر ہے۔ تم اس کی خدمت کرو، اس کا علاج کراؤ، اس کی تیمارداری کرو، انشاءاللہ اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کے لافانی محل عطا فرمائیں گے۔ مسافر خانے کا مالک کہنے لگا، اگر تمہیں اس شخص کی اصلیت معلوم ہو جاتی تو تم مجھے ملامت نہ کرتے، میں اسے خوب جانتا ہوں، اگر تم جاننا ہی چاہتے ہو تو سنو، یہ شخص اس مسافر خانے میں ایک رات ٹھہرا، اگلے دن میں نے ایک ناقابل یقین منظر دیکھا، اس نے بھیک مانگنے والوں کا روپ دھارا، ہاتھ میں موٹا عصا لیا، بدن پر پھٹے پرانے کپڑے لپیٹے اور مانگنے نکل کھڑا ہوا۔ میں حیران رہ گیا کہ یہ شخص بھکاری بھی ہو سکتا ہے، لیکن ابن سعید تم ہنس کیوں رہے ہو؟ تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ مسافر خانے کا مالک احتجاج کرنے لگا، محمد بن سعید یقیناً تم اس شخص کی عظمت سے ناواقف ہو۔ مالک یہ جاننے کے بعد بھی کہ یہ روزانہ گداگری کے لیے نکلتا تھا، تم اس کی عظمت کے گن گائے جا رہے ہو؟ محمد بن سعید، ہاں یہ بڑی عظمت اور شان والا شخص ہے، تم کیا جانو کہ یہ شخص کتنا مقام و مرتبے کا مالک ہے؟ ہاں اس شخص نے جنت ارضی اندلس کی سرزمین کو چھوڑا، اس کی خوبصورت وادیاں، اس کے باغات، اس کی نہریں، اس کی کھیتیاں، اس کے محلات اور بہترین وہاں کا موسم چھوڑ کر اس نے بغداد میں آ کر اپنا ٹھکانہ لگایا۔ اسے کسی مال و دولت کی تمنا نہیں تھی، منصب کی طلب یا کسی کی دوستی اسے اس شہر میں نہیں کھینچ کر لائی، یہ محض علوم حدیث کے حصول کے لیے یہاں آیا ہے۔ اس کی سب سے بڑی آرزو ابو عبداللہ سے ملاقات تھی۔ مسافر خانے کے مالک نے جب ابو عبداللہ کا نام سنا
تو सन्नाटे में आ गया। वो अजीम शख्सियत की अज़मत और वजाहत के तसव्वुर में खो गया और उसके दिल में बकी बिन मखलद के बारे में जो नफ़रत, बुग़्ज़ और गलत फहमियाँ जगह पा रही थीं, सब यकायक काफूर हो गईं। अबू अब्दुल्ला का वो ख़ुद भी शहदाई था और उनके इल्म, फ़ज़ल, तक़वा, वरा का मुअतरिफ़ था। उसने बेख्तियार पूछा, क्या वाकई ये शख्स उंदलस से महज अबू अब्दुल्ला अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह ताला से मिलने के लिए आया है? मोहम्मद बिन सईद ने जवाब दिया, यकीनन ये बात दुरुस्त है मालिक। अच्छा, फिर तो ये शख्स वाकई बड़ा अजीम है। क्या इसकी अबू अब्दुल्ला से मुलाकात हो गई? कब हुई? कैसे हुई? उसने अपना इश्तियाक ज़ाहिर किया। मोहम्मद बिन सईद ने अब उस राज से पर्दा उठाना शुरू किया कि बकी बिन मखलद जब बगदाद पहुंचा और तुम्हारे इस मुसाफिर खाने में ठहरा, अपना सामान यहाँ रखा और अबू अब्दुल्ला की तलाश में निकल खड़ा हुआ। वो दिन बड़े कठिन थे। इमाम अहमद इब्न हम्बल हुकूमत के ज़ेर अताब थे। कोई शख्स हुकूमत के खौफ के बायस उनसे मुलाकात न करता था। अगर सरकारी कारिंदों को मालूम हो गया कि उसके अहमद इब्न हम्बल से ताल्लुकात हैं तो वो जेल में बंद कर दिया जाता, उसे सख्त तरीन सज़ा मिलती और जो उनके करीबी साथी थे वो तो पहले से ही सज़ा भुगत रहे थे। अबू अब्दुल्ला अपने घर में अकेले नज़रबंद थे। जो भी उनसे मिलने जाता, सरकारी जासूस उसे फ़ौरन गिरफ़्तार कर लेते। बकी को इन हालात का इल्म हुआ तो वह सख्त परेशान हुआ और रंजीदा हुआ। फिर बगदाद की एक जामा मस्जिद की जानिब वो चल पड़ा। यहाँ हदीस के बाज़ हल्के कायम थे। वो इन हलकों से गुज़रता हुआ एक बड़े हल्काए दर्स में बैठ गया। मैंने इस शख्स को पहली मर्तबा वहीं देखा। इसका हुलिया और इसका लिबास, उसकी शक्ल ये बताने के लिए काफ़ी थी कि ये अजनबी है, गरीबुद्दयार है। मैंने उससे हाथ मिलाया। बगदाद आमद पर खुशी का इजहार किया। मैंने इससे पूछा कि ये कौन है जो पढ़ा रहा है? मैंने उसे बताया कि ये यहया बिन मुईन है। उन्हें खूब जानता था। उसकी आंखें खुशी से चमकने लगीं। वो कुछ देर बैठा रहा। इस दौरान शेख के शागिर्दों ने शेख से सवाल किए और शेख उन्हें जवाब देते रहे। लोग उनसे उलमाए हदीस के बारे में पूछ रहे थे। वो बताते जा रहे थे, कोई सिका है, कोई ज़ईफ़ है, कोई मजहूल है। अचानक वो शेख से मुखातिब हुआ, अबू ज़करिया, अल्लाह आप पर अपने फ़ज़ल करम की बारिश फ़रमाए। मैं गरीबुद्दयार हूँ, बड़ी दूर से आया हूँ, कुछ सवालात करना चाहता हूँ। बराह करम मेरे सवालात का जवाब दीजिए। शेख ने फ़रमाया, पूछो। वो पूछने लगा मुख्तलिफ़ उलमा के बारे में। उसने अपने शेख से पूछा तो शेख उन्हें किसी को सिका कहते, किसी पर जरा करते, किसी की तादील करते। अचानक उसने असर इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह ताला के बारे में पूछा और कहने लगा कि इमाम अहमद इब्न हम्बल के बारे में बता दें कि वो कैसा है। उसका सवाल करना था कि तमाम हाज़िरीन एकदम सन्नाटे में आ गए और वो शख्स सब की तवज्जो का मरकज़ बन गया। शेख ने जवाब में कुछ पसो पेश किया, लेकिन जल्द ही उनका चेहरा नूर ईमान से जगमगा उठा। हाकिम के गैज़ व गज़ब की परवाह किए बग़ैर उन्होंने साइल से कहा कि तुम कहाँ के रहने वाले हो? हम तुम्हें अहमद इब्न हम्बल के बारे में बतलाते हैं। शेख ने थोड़ी देर इंतज़ार किया और अपने नताइज से बेपरवाह होकर पूरे एतमाद से कहा कि वो असर हाज़िर में मुसलमानों के इमाम हैं। उनसे बेहतरीन आदमी इस वक्त और कोई नहीं है। फिर उसने अबू अब्दुल्ला के घर का पता पूछा। बाज़ लोगों ने उसे हुक्मरानों के अताब से डराया कि उनके कारिंदे उस घर की मुसलसल निगरानी करते हैं। कुछ लोग चंद कदम उसके साथ चले और अबू अब्दुल्ला के घर का रास्ता बता दिया। उसने अपनी राह ली और इसी तरह वो बिल आखिर इमाम अबू अब्दुल्ला अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह ताला के घर पहुँच गया। क्या वाकई उन अय्याम में ये शख्स अबू अब्दुल्ला के घर पहुँच गया था? उस मुसाफिर खाने के मालिक ने हैरानी से पूछा। मोहम्मद बिन सईद ने जवाब दिया, हाँ। फिर उसने दरवाज़ा खटखटाया। अबू अब्दुल्ला ने दरवाज़ा खोला तो कहने लगा, इमाम साहब, मैं बहुत लंबा सफ़र तय करके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। अबू अब्दुल्ला कहने लगे, मरहबा, तुम किस मुल्क से आए हो? साइल ने जवाब दिया कि मैं मग़रिब अक़सा से। अबू अब्दुल्ला
फरमाने लगी अफ़रीका से आए हो? साहिल कहने लगा नहीं, अफ़रीका से भी ज़्यादा दूर, अफ़रीका से मेरे मुल्क तक जाने के लिए बहरी जहाज़ में सवार होना पड़ता है। मैं उंदुलस से आया हूँ। इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाने लगे बिलाशुबा ये बहुत दूर का सफ़र है, तुमने बड़ी मुशक्क़त झेली है, मगर तुमने इतना लंबा सफ़र किस लिए किया? साहिल कहने लगा कि मैं आपसे हदीस की समाअत के लिए हाज़िर हुआ हूँ, आपकी शागिर्दी का शर्फ़ हासिल करने का आरज़ूमंद हूँ, ताकि आपसे हदीस पढ़ूँ और आगे उसे लोगों तक पहुँचाऊँ। अबू अब्दुल्ला अहमद इब्न हम्बल कहने लगे तुम मेरे हालात से वाकिफ़ हो चुके होगे, मैं किसी से मिलता हूँ ना मैं किसी के पास जाता हूँ ना किसी को बुलवाता हूँ। अगर तुम मुझसे पढ़ने आओगे तो तुम्हारी सलामती की ज़मानत मैं नहीं दे सकता। साहिल इमाम मुहतरम, मैं एक इस मुक़द्दस राह में चाहे मुझे कितनी तकलीफ़ें झेलनी पड़ें खुशी से मंजूर है, बड़े बड़े अज़ाब भी मेरी राह में रुकावट नहीं बन सकते। अबू अब्दुल्ला कहने लगे अगर हुकूमत के कारिंदों ने ज़बरदस्ती तुम्हें रोक दिया तो फिर क्या करोगे? वो साहिल कहने लगा जो हकीकी तालिब इल्म था कि मैंने एक हीला इख्तियार किया है, मैं भिखारी के भेस में दरवाज़े पर आऊँगा और सदा लगाऊँगा कि अल्लाह आप पर रहम फरमाए, मुझे कुछ दीजिए। हकीकत में मैं भिखारी नहीं हूँगा, आप इस सूरत में मुझ पर अपना दरवाज़ा खोल देंगे और एक हदीस बयान कर देंगे। इमाम अहमद इब्न हम्बल फरमाने लगे दुरुस्त है, मगर ऐसा करना कि किसी भी इल्मी हलके में शमूलियत इख्तियार न करना, ऐसा ना हो कि लोग तुम्हें पहचान जाएं। सामीन कराम, उसके बाद फिर उस हकीकी तालिब इल्म ने ऐसा ही किया कि उसने अपना हुलिया गदागरों जैसा बना लिया। इसी हुलिये में वो रोज़ाना इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह ताला के घर जाता और लोग ये गुमान करते कि ये तो एक भिखारी है। मोहम्मद बिन सईद कहने लगे कि इसी तरह वो सराय के मालिक से कहने लगे कि तुमने भी इसे भिखारी समझा था, तुम इसे गुमान करते थे कि ये भीख मांगने वाला है, ये लोगों से खैरात मांगने जाता है, लेकिन वो दर हकीकत खैरात नहीं बल्कि इल्म हदीस की मताए गरां हासिल करने जाता था। ये सुनकर उस मुसाफिर खाने के मालिक ने सर झुका दिया और कहा आज उसकी निगाहों में ये निहायत मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम शख्स था जो बीमार पड़ा हुआ था, क्योंकि वो इमाम अहमद इब्न हम्बल के शागिर्दों में से था। वक्त गुज़रता रहा, मुश्किलात और परेशानियों का दौर ख़त्म हुआ। अब खिलाफत की बाग दौड़ मुअतसिम के हाथ से निकल कर मुतवक्किल के हाथ में आ गई। उसने अहले सुन्नत वल जमात के मसलक को दोबारा ज़िंदा किया, शिरकियात और बिदात का ख़ात्मा किया। अल्लाह ताला ने इमाम अहमद इब्न हम्बल के सब्र और इस्तिक़ामत को शर्फ़ क़बूलियत बख्शा। वो बिलाशुबा इमाम अहले सुन्नत से हदीस के असबाक जारी हुए और उनके फतावा को तस्लीम किया गया और बकी बिन मखलद के बारे में लोगों ने गवाही दी कि ये आली हिम्मत शख्स हकीकी तालिब इल्म था जिसने दुनिया भर की सारी आसाइशों और आराम को बाला ताक रखा और भिखारी के रूप में रोज़ाना जाता था और कई सालों तक इसी तरह वो इमाम अहमद इब्न हम्बल के दरवाज़े पर जाकर दस्तक देता। इमाम साहब आते, एक हदीस आते हुए पढ़ देते और एक हदीस जाते हुए सुना देते। ये हकीकी तालिब इल्म उन हदीसों को अपने दिल में याद कर लेता, वापस आकर फिर अपने उस मुसाफिर खाने में जहाँ रहता था उन हदीसों को लिख लेता। और तारीख़ गवाह है कि इसी बकी बिन मखलद रहमहुल्लाह ताला ने जब हकीकी इल्म हासिल किया और इस कदर मेहनत के साथ इल्म हासिल किया तो वक्त के इमाम बने और पूरे इंदलस की सरज़मीन में इन्होंने ऐसा पौधा लगाया कि इनके बाद पूरे इंदलस के अंदर इस्लाम फैला। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम सब दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें भी इन जैसा हकीकी तालिब इल्म बना दें कि बड़ी से बड़ी रुकावटें भी इल्म हासिल करने की राह में हमारे लिए रुकावट न बन सके। और आज तो जदीद दौर है, हम जितना आसानी के साथ इल्म हासिल करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि हमने इल्म हासिल करना है। और दीन का इल्म, कुरान का इल्म, हदीस का इल्म, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस, आपके फ़रामीन, इस्लाम की तालीमात, उन्हें हमने हासिल करना है, सीखना है, याद करना है और अपनी औलाद तक, अपने शागिर्दों तक, अपने दोस्तों तक उस इल्म को पहुँचाना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को इल्म हासिल करने वाला बना दें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।